زبیدہ: محمود صاحب تشریف لے جائیے، آپ کی زبان قابو میں نہیں ہے۔ محمود: ارے تو یہ اچھا صاحب سنیے، اگر آپ اس سے شادی نہ کریں گی تو مر جائے گا کمبخت، افیونی ہے کنجوس کہیں کا۔ زبیدہ: میں مجبور ہوں میرے والد صاحب۔ محمود: ارے چھوڑیے صاحب، اب آپ جوان ہیں، آپ سمجھدار ہیں، اپنی اونچ نیچ سمجھ خود دیکھ سکتی ہیں۔ زبیدہ: مگر ان کی پوزیشن۔ محمود: ان کی پوزیشن بہت اونچی ہے، مگر صاحب رشید میں برائی ہی کیا ہے، بس غریب ہی تو ہے۔ زبیدہ: غریب امیر کا سوال نہیں، سوال اس کا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر رشید سے شادی کر لوں تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ سید ہدایت علی کی لڑکی ایک کنگال کے ساتھ چل دی۔ محمود: اس میں آوارگی کا کیا ہے، جوانی میں سبھی کرتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب معاف کیجیے گا، جوانی میں کیا کم آوارہ ہوں گے۔ زبیدہ: خاموش رہیے بدتمیز، جاؤ یہاں سے ورنہ۔ محمود: یا وحشت معاف کیجیے گا، میری زبان کمبخت گندی ہے، سنیے تو بس ایک بات۔ زبیدہ: آپ بیکار خود کو تھکا رہے ہیں۔ محمود: تو لیجئے اس بیچ پر بیٹھ جائیے ذرا کہ ذرا۔ زبیدہ: آپ چلے جائیے ورنہ میں سپاہی کو بلواتی ہوں۔ محمود: واہ خیر ایک دفعہ ذرا پھر سوچ لیتی۔ محمود: واہ خیر ایک دفعہ پھر سوچ لیتی۔ زبیدہ: سوچ لیا میں نے، آپ تشریف لے جائیے۔ محمود: لے جا رہا ہوں تشریف، ایک بات سن لیجیے۔ وہ زبیدہ: کیا؟ محمود: کہ اگر رشید کی جگہ میں ہوتا تو منہ تو کیا، میں منہ تو کیا کرتے آپ۔ محمود: میں بس کیا بتاؤں، دھری رہ جاتی آپ کی ساری باتیں اور میں چٹکی بجاتا بس۔ زبیدہ ہنس دیتی۔ محمود: اوہو شکریہ محمود۔ زبیدہ: کیا شکریہ؟ محمود: آپ کی توسع فرمانے کا شکریہ کہ آپ غصہ نہیں، اب تو آپ اس غریب کا دکھڑا سن لیں گی۔ زبیدہ: میں ایک دفعہ آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجبور ہوں، میں اپنے والد کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ محمود: لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آپ کے والد صاحب ایسا جنگیزی حکم کیوں نازل کر رہے ہیں، ویسے تو بڑے قوم پرست بنتے ہیں، جب اپنی لڑکی کا سوال آتا ہے تو غریب کو ٹکرا کر موٹے سے سیٹ کی طاق میں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں۔ لالچی بڈھا۔ زبیدہ: کون لالچی بڈھا؟ محمودہ: معاف کیجیے گا، آپ کے والد صاحب، قبلہ صاحب، زبان کمبخت۔ زبیدہ: محمود صاحب میں پھر آپ سے کہتی ہوں براہ کرم یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اور محمودہ: سنیے تو۔ محمود: سنیے تو۔ زبیدہ: میں کچھ نہیں سننا چاہتی، چل دیتی ہے۔ محمود: بس ایک بات، سیٹی بجاتا چل دیتا ہے۔ وقفہ۔ محمود واپس آ کر رشید سے: لو بھائی ہم تو آپ سی کر آئے۔ رشید ذرا تیزی سے: میں نے کہا تھا نا وہ کبھی نہیں اپنے خاندان کی ناک نہ کٹوائے گی۔ محمود: خاندان کی ناک سب مکاری ہے، خاندانوں کی تو ناک کے سیر بتی ہے۔ یہ لڑکیاں خود جو کچھ نہیں کرنا چاہتی ہیں، خاندان سماج کے سر تھوپ دیتی ہے، ان کا سارا الزام اور خود مظلوم بن جاتی ہے۔ رشید: خیر تمہیں معلوم ہو گیا کہ زبیدہ ان لڑکیوں میں سے نہیں۔ محمود: قطعی نہیں، وہ بالکل بہانے کرتی ہیں، تم تو ہو بزدل۔ رشید: اس میں بزدلی کی کیا ہے، کیا کر سکتا ہوں میں؟ محمود: یہ کر سکتے ہو جی کے ناک کاٹ چڑیل کی۔ محمود: رشید محمود بکواس نہ کرو، ہاتھ تم مردوں کی مردانگی اور مردوں کی طاقت کی تمہاری بگڑ میں ہوتا ہے۔ رشید: کیا کرتے؟ محمود: وہ کرتا کہ زبیدہ بیگم کی ساتھ پوچھتے یاد کر کے۔ سنو رشید، تم مجھ سے اب دیوی سمجھتے ہو نا، کیوں؟ رشید: قطعی، اور کیا رہ گیا ہے میرے لیے دنیا میں۔ محمود: قطعی تو پھر چلو ہٹاؤ
बस तुम उससे पूजा करो और हम उससे शादी करते हैं। महमूद, मालूम है तुम्हें कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा अमीर नहीं। महमूद, अमीर गरीब क्या है, मैं तो कंगाल हूँ। तुम्हारे चचा 20 रुपए महीना देते हैं और मैं कॉलेज के खैरात खाने में पला हूँ। लो बस फैसला हो गया, सुनो, 1 हफ्ता के अंदर अंदर हम शादी करके दिखवा देंगे। सुना? रशीद जोर से कहका लगाता है, जरूर। महमूद, क्या गधे की तरह मुंह फाड़ रहे हो? लो शर्त बदलो। रशीद मजाक में, खूब भाई, वाह अच्छी शर्त है। महमूद, हाँ हाँ लो, इस हफ्ते के अंदर लो तो तुम देवी बनाकर पूजते रहो और हम लाते हैं उसे। रशीद, जानते नहीं हो, मुझे अगर कॉलेज के झगड़े में मैं ना पढ़ना होता तो आज को रशीद, आज को हिटलर होते हिंदुस्तान के। महमूद, कुछ भी, ये हतक है हमारे समझे। अब तुम देखना क्या बताएं यार, आज तो इलाहाबाद जाना है, स्टूडेंट्स एसोसिएशन की मीटिंग है। रशीद, तुम फिर छोड़ो उस मीटिंग को। महमूद, नहीं नहीं जी, अगर ये मिल गया है 2nd क्लास का, जाना तो पड़ेगा ही। रशीद, और फिर शादी? महमूद, शादी होगी, तुम जरा अचकन वगैरह धुलवा लो वाला, तुम वही बनना पड़ेगा। दोनों कहका लगाता है। स्टेशन पर खांचा वाला की पुकार, रेल की गड़गड़ाहट, धक्का दे जुबैदा नजर आती है। महमूद, ओ मिस जुबैदा, आप भी तशरीफ ले जा रही हैं? जुबैदा, जी मैं कलकत्ता जा रही हूँ, खाला के पास अपनी। महमूद, हो रशीद से डरकर अखबार वाले की आवाज। जुबैदा, अखबार? ए अखबार वाले। महमूद, ठीक, मैं भी इलाहाबाद जा रहा हूँ, आप अगर कोई तकलीफ ना हो तो। जुबैदा, रुखाई से शुक्रिया अखबार वाले। रेल चल देती है। दूसरा स्टेशन पर पर्दा, फिर अखबार वाले को पुकारती है, वो नहीं सुनता तो नीचे उतरकर बुक स्टॉल पर जाती है। रेल चल देती है और वह जल्दी में महमूद के डब्बे में घुस जाती है। महमूद, अरे कौन है जी? जुबैदा, मैं हूँ। रेल जल्दी में। महमूद, अच्छी जल्दी है और वो आप हैं मिस जुबैदा, माफ कीजिएगा, मैं समझा कोई और औरत है। जुबैदा, क्या? महमूद, ताकि मौका मिले और मुझे फंसा दे। अच्छा अजी, मैं इन औरतों में से बहुत डरता हूँ और खास तौर पर अकेली रेल के डब्बों में। जुबैदा, आप औरतों से भी डरते हैं? महमूद, जी सिर्फ औरतों ही से डरता हूँ, मर्दों की तो ठोक कर दोस्ती करता हूँ, दोस्त कर लेता हूँ। मगर जुबैदा, आप मुझसे भी डरते हैं? इत्मीनान से। महमूद, कह तो दिया सब औरतों से डरता हूँ। जुबैदा, मगर मैं भला आपको क्या बिगाड़ सकती हूँ? महमूद, बिगाड़ तो आप भी खूब सकती हैं, मगर ये ना समझिएगा कि मैं आपको बिगाड़ने दूंगा। जुबैदा, वो कैसे? महमूद, ये ऐसे कि आप गुल मचाएं कि मैं आपकी इज्जत ले रहा हूँ तो। जुबैदा, महमूद साहब। जुबैदा, जी मुझे घर क्या देने की कोशिश ना कीजिए, ये पार्क का मैदान तो है नहीं ना, बाबा जी का घर और मेरा डरबा है, समझे? जुबैदा, आप बिल्कुल वहशी हैं, बात करने की तमीज नहीं। जुबैदा, जी मैं वहशी सही, बड़ी आई वहां से तमीज सिखाने। अगर मैं अभी अभी उठकर आपको अपना गरम गरम बिछौना देता और खुद बैठकर आपकी हसीन सूरत तकता तो आप कहती मैं बहुत तमीजदार हूँ। माफ कीजिएगा, ऐसे उल्लू कहीं और बसते हैं। जुबैदा, आप तो बिल्कुल पागल हैं। महमूद, पागल हूँ? अगर आप जबान संभाल कर नहीं बैठ सकती तो तशरीफ ले जाइए। जुबैदा, ये आपका डब्बा तो नहीं? महमूद, जी हाँ, इस वक्त तो ये डब्बा मेरा और मेरे बाप का है। सुना, अगर आपने चैन छड़ी करेंगी तो कान पकड़कर। जुबैदा, मैं जंजीर खींच लूंगी अगर आप। महमूद, जरा खींचे तो जंजीर, उठाकर रेल से बाहर न फेंक दूं, फिर फेंक दूंगा। रशीद, नाबाशद, क्या आप उल्लू बना लिया? जुबैदा, अगर आपको शर्म नहीं आती तो औरतों। महमूद,
हम कुछ औरतों नहीं जानते, समझी, हमें कुछ शर्म नहीं आएगी। कौन यहाँ बैठा देख रहा है, उठाकर फेंक देंगे और फिर कह देंगे जानकर कूद पड़ी, खुदकुशी करना चाहती थी। जुबैदा, आप झूठ भी बोल सकती हैं, कौन मानेगा आपकी बात। महमूद, हाँ कोई नहीं, सब मान लेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि वालिद आपके आशिक से शादी नहीं करने देती थी, इसलिए। जुबैदा, अजीब इंसान है आप। जुबैदा, क्या? महमूद, यही के अकेला सफर करती डर नहीं लगता। जुबैदा, क्यों, इसमें डर की क्या बात है। महमूदा, लो, कोई डर की बात नहीं, फर्ज कीजिए कोई आपकी इज्जत पर हमला करे। जुबैदा, वाह। जुबैदा, हाँ फर्ज कीजिए, मैं ही जरा। जुबैदा, मुझसे बात ना कीजिए, आप पागल हैं, मुड़ जाती है। महमूद, ए जी देखो, हम किसी की बदजबानी नहीं सह सकते, जबान काट लिया करते हैं। और सुनो, इधर मुंह करके बैठो, हमारा दिल घबराता है, दूसरे बैठना बदतमीजी है। जुबैदा, मगर आप ऐसा मजाक। जुबैदा, नहीं उतर सकोगी तुम। जुबैदा, आप मुझे जबरदस्ती रोकेंगे क्या। महमूद, और क्या, देखिएगा। जुबैदा, जरा उतरने की कोशिश करके आप कैसे रोक सकते हो। हस्ती आपकी मुझे। महमूद, हस्ती तो मेरी बड़ी भारी है, पकड़ लूंगा यूं। इसका हाथ पकड़ लेता है। जुबैदा, छोड़िए मुझे, छोड़िए। महमूद, अच्छा लो, मगर देखो उतरने की कोशिश ना करना, वरना ठीक ना होगा, समझे। सबके सामने पकड़ कर। हाँ, लोग पूछेंगे तो कह दूंगा मेरी बीवी है। जुबैदा, महमूद साहब, बीवी है और रूठ गई है, जरा हंसता है। जनाब क्या समझेंगे, अब तुम स्टेशन पर उन्हें कहाँ सबूत देती फिरोगी कि मेरी बीवी नहीं हो, सर हिदायत अली की बेटी हो। हाँ, और सारे अखबारों में छप जाएगा, लोग क्या कहेंगे, और फिर इलेक्शन और असेंबली में सीट सब खाली रह जाएगा। और भाई, मैं तो एक कंगाल तालिब इल्म हूँ, कह दूंगा बीवी नहीं, माशूका से ही मेरे साथ भाग कर जा रही है बेचारी। अरे आपको सर्दी लग रही है, ये लीजिए कंबल। जुबैदा, हट जाएगी, हो चुका मजाक। महमूद, कौन कमबख्त मजाक कर रहा है, लो हमारी कसम, कंबल ओढ़ लो। जुबैदा, झूठे मक्कार जमाना भर के। महमूद, और हंसता है। जुबैदा, बदमाश। महमूद, हाँ क्या फूल भरती रही है मुंह से, और कहिए, और कुछ फरमाइए, देखिए रेल रुक रही है, कहिए तो आपको गुस्ल खाने में बंद कर दूं, और हाँ ये ठीक रहेगा, वरना आप। जुबैदा, आप हैरान ना हो, बिल्कुल। महमूद, हाँ जरूर होऊंगा, लो कंबल ओढ़ लो, सर्दी लग गई है तो क्या इलाज करता फिरूंगा, गरीब आदमी। जुबैदा, हट जाओ, मार दूंगी, मरदूद कहीं के। महमूद, ओहो, आप भी अकड़ बाकी है, अब भी अकड़ बाकी है, देखो जी मैं मजाक नहीं करता, फिर कहता हूँ कंबल ओढ़ लो, वरना कह कहा। जुबैदा, आपको क्या मिलेगा मुझे परेशान करके। महमूदा, तुम्हें परेशान करके, तुम्हें सच कहती हूँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। सुनो, मैं मौका की ताक में ही था, और भाई कमाल है कि मौका खुद शायद मेरी ताक में था। और अरे अल्लाह मियाँ, वाह। जुबैदा, क्या बक रहे हो आप। महमूद, मैं ये बक रहा हूँ कि जनाब शादी करने वाला हूँ। जुबैदा, क्या वाहियात है, मजाक नहीं, जब तुम रशीद से शादी नहीं करती तो मैं मौजूद हूँ। जुबैदा, खामोश बेहुदा। महमूद, देखो कई दफा कह चुका हूँ, बदजबानी ना करो, हाथ उठ जाएगा तो फिर। हाँ देखो, मैंने उस वक्त इरादा कर लिया था कि तुमसे शादी करूंगा। जुबैदा, जबरदस्ती, कतई, मगर उसकी शायद जरूरत ना पड़ेगी। जुबैदा, मगर ये कैसे हो सकता है, हंसती है। महमूद, ऐसे होगा कि कल अखबार में छप जाएगा कि सर सैयद हिदायत अली की साहबजादी
صاحبہ کی شادی خانہ آبادی، مسٹر محمود طالب ایم ایس سی